Today we're going to talk about physiotherapist role in rehabilitation and COVID-19. My name is Dr. Sana Komal and I'm an orthopedics rehabilitation specialist. I'm working as an currently right now I'm working as a head of rehabilitation department in PIMS Peshawar, and I'm working as a PhD scholar and researcher there in Shandong University, China, and my subject is control science on rehabilitation of robotics. So we'll go thoroughly from 1 to 2 to 5, and we'll start from introduction, and then we'll see how a rehabilitation specialist can play a marked role in COVID-19 patients. So let's start. We'll go from an introduction, and then we'll check the relationship between rehabilitation and COVID-19, and then we'll go for responsibilities of physiotherapists, and we'll see how a teamwork can actually bring a marked difference in a practice setup. So then the conclusion. So let's start with, according to World Health Organization, there are two major things: evolution and prevalence. In Pakistan, fortunately, very luckily, we do have a very good ratio of recovery, and there are very low ratio of mortality rate or the deaths due to COVID-19. If we see in this picture, we're having a comparison between Pakistan, Canada, and Russia. Why we are comparing Canada and Russia with Pakistan? Because of two things. Number one, the surface area or the land area. Number two, the population. And number three, of course, we are not so advanced in health facilities as per in comparison to these two big nations. So just look at their area. According to their area and their population, the rate of COVID-19 patient is quite well, while Pakistan is very small and a little in front of in those two nations. But still, the rate was so high in June, and it's been going down in July. So in Pakistan, till date, we're having 206,000 patients, like 206,152 patients till date. But in Pakistan, it means that we're having 4,080 patients per day. In a single day, we are having more than 4,000 to 5,000 patients. Unfortunately, we don't have enough kind of super system in Pakistan, so we cannot record all of the patients. So still, we can give a range between 4,000 to 5,000 patients are being there. We are having per day. So if we split that into minutes and in seconds, then we came to know that in every 30 minutes, we are having 85 patients with COVID-19 in Pakistan. It is very, very alarming. It means like in 15 minutes, we are having 42 patients. That's quite simple. But still, the condition in Pakistan is quite well. As compared to the big nations, it's not fine, but still the mortality rate is very, very controlled. In the bigger picture, if we came to know, then the death rate in Pakistan is actually very low, and the recovery rate is now till date is like more than 58 to 59% in Pakistan, in a country known as the nation of doctors and engineers, in a country known as a poor country. We're having a control on COVID-19. We'll come to know and we'll discuss what are the reasons and why we are in a stronger way. So every day we are having 4,000 patients. Let's suppose we're having 8,000 patients. Let's double it. If we are doing a double number, then we came to know every nine person. If we met 10 person in a day, then you should be sure that you have you have seen 9 COVID-19 patients. You got the point? Like every 6 person out of 10 is having a risk to have COVID-19. And let's suppose all of these 60% nation is already on risk of having mild conditions of COVID-19, and in all of those, 40% or 4 people out of 10 can have a risk
to have something like critical condition. So in Pakistan, till date, we're having 3,892 mild cases per day and 3,337 mild to critical cases in Pakistan. Still, the recovery rate is quite fine, but we cannot say like, okay, we are in safe area. We're still in danger. We are still in a high risk condition. The most interesting and most heavy kind of slide is this. Actually, unfortunately, there are some fake news, even from WHO as well. There are some most common conditions. Why we should call the few conditions as most common conditions? Just because they are more higher in number in patients. They are more have been seen in the clinics, and why we are considering them like most common conditions, and why we are saying a few conditions as serious symptoms. There's a question, by the way, and there's another question that why we are saying a few conditions as less common condition. Um, I think I should go for English and Urdu as well, so it can be easy for both of you, for everyone to understand. So in most common conditions, actually यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसे conditions हैं जिनको हम most common condition consider करते हैं. Fever, cough, difficulty in breathing, and sore throat. By the way, जो 90% यूरोप और इंडिया, सॉरी यूरोप एंड यूएसए और चाइना के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो मेन कंडीशंस देखी गई हैं वो यही देखी गई हैं. बट इन लेस कॉमन कंडीशंस, वो वाले एरियाज़ जहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ा बेटर है, वो वाले एरियाज़ जहाँ पर थोड़ा कंट्रोल्ड सिस्टम है, वहाँ पर कुछ डिफरेंट कंडीशंस और सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं. फॉर एग्जांपल बॉडी एक्स, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस और स्किन रैशेज. ये सारे कंडीशंस लेस कॉमन कंडीशन हैं. वाई दीज आर लेस कॉमन? बिकॉज इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनमें ये वाली कंडीशंस मोस्टली अपीयर नहीं हो रहे होते. एंड देर आर सम सीरियस सिम्टम्स. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि हम क्यों इन सिम्टम्स को सीरियस सिम्टम्स कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर डायग्नोसिस, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियल डायग्नोसिस. और इसका रीज़न ये है कि जब चेस्ट पेन होता है तो हम डायरेक्टली इसको कोविड-19 नहीं समझ रहे होते, अभी हम डायग्नोज कर रहे होते हैं. ऐसा अक्सर हॉस्पिटल सेटअप में देखा गया है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है एंड दे आर सेइंग ओके आई एम हैविंग सम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड आई एम हैविंग सम चेस्ट पेन, तो हम इसको डायरेक्टली कोविड टेस्ट करवाने के बजाय हम उसको रूल आउट करना शुरू कर देते हैं. उनके जीआईटी को देखना शुरू करते हैं, उनके कार्डियो को देखना शुरू करते हैं, उनके बाकी हेल्थ कंडीशन को देखना शुरू करते हैं. जब तक हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फंसे होते हैं और ट्रीटमेंट उनका कर रहे होते हैं, तब तक जो पेशेंट है वो एक माइल्ड कंडीशन से क्रिटिकल और सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका होता है. सो दैट्स एन अलार्मिंग कंडीशन. दैट्स वाई जो सीरियस सिम्टम्स कंसीडर किए जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स जो है सिर्फ तभी अपीयर होते हैं जब कोई भी कोविड-19 का पेशेंट है वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आता है, लॉस ऑफ स्पीच और टेस्ट के साथ आता है, तो हम लोग उनको बजाय इसके कि हम उनको कोविड-19 कंसीडर करें और उसको उस तरह ट्रीट करें, हम लोग उनको रेफ़र कर देते हैं स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ या उनको न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ भेज देते हैं. सो दैट्स वाई ये एक सीरियस सिम्टम कंसीडर किया जाता है. और इसलिए इसको सीरियस सिम्टम भी कंसीडर किया जा रहा है कि जब कोई भी पेशेंट जो माइल्ड कंडीशन में थे और जब वो उनका कंडीशन बेटर नहीं हुआ और उनके इन्फेक्शन बढ़ता गया, देन दे केम टू नो एंड देन दे वर हैविंग सम चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ स्पीच एंड टेस्ट एंड देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो you are a health professional and you should be very 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 clear about every symptom. अगर आप अच्छी तरह से किसी पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर सकते तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते. एंड यू कैंट बी अ वेरी गुड health practitioner until unless you're not very good in in diagnosis. So आप diagnosis तभी कर सकते हैं जब आपको symptoms का पता होगा. So you should be very very careful about every symptom. ठीक है. Next, हम हमेशा सुनते हैं like prevention is better than cure. दुनिया में 2 ही तरह के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, सर्जरी या प्रिवेंशन मेजर्स. प्रिवेंशन मेजर्स में हमारे पास मेडिकेशन भी आती है, हमारे पास वो सारे ट्रीटमेंट आते हैं जो हम हॉस्पिटल्स में करते हैं और वो सारे ट्रीटमेंट आते हैं जो हम रिहेबिलिटेशन सेटअप में करते हैं. व्हेन एवर यूर हैविंग और समवन इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ हेल्थ कंडीशन, तो हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स
को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हेडेक के लिए भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है या कोई भी ऐसा पेशेंट जिनको ऑर्थोपेडिक्स में हम देखते हैं, न्यूरो में देखते हैं, तो हम उनको जीआईटी के मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, या हम उनको कोई अदर मेडिसिन भी इन कम्बिनेशन देते हैं। वाई? फॉर द रीज़न, फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंशन। हम उनके जीआईटी को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, हम उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन मेयर। एंड एज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन क्या ज़रूरी है पेंडेमिक के लिए। वी कैन क्लीन अवर सेल्फ, हम मास्क भी कर सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, और गैदरिंग नहीं करेंगे। डेफिनेटली बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप सब माशाल्लाह मेरे से बेहतर भी समझ सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज़ पॉसिबल ट्रीटमेंट। अब ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है पॉसिबल है एज अ रिहैब स्पेशलिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल? टिल द डेट वी आर हैविंग ऑक्सीजन थेरेपी, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस एंड रिहेबिलिटेशन। एक मज़ेदार बात है, एक्चुअली आई एम वर्किंग विद सम इंटरनेशनल फॉरम्स, और फॉर्चुनेटली एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है इंटरनेशनल लेवल पर कि बहुत सारे 90% इवन पेशेंट्स दे आर running for rehabilitation instead of going for medication. And that was quite shocking for me. And at that time, I really came to know that I am much more than what I'm considering myself. So it was, a very good kind of feeling for me. So Russia, India, and United Kingdom and United States of America, बहुत सारी countries अभी भी क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स किए हैं एंड दे हैव मेडिसिन, बट स्टिल उनका मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स like we're still working on these 4 possible treatments. So oxygen therapy, why we should know about everything. आपके पास जब कोई पेशेंट आ जाता है रिहेबिलिटेशन में, तो अगर आपके पास उनको रेफ़र करने की एबिलिटी नहीं है, then you are actually आप उनको नुकसान दे रहे हैं. So that's why we should know कि हम जिस बीमारी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो हमारे से हल नहीं हो रहा, या हमारे से बिल्कुल हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे, then what is the next step? That's why we should know the other treatments as well. So in oxygen therapy, a normal blood oxygen level कितना होना चाहिए एक पेशेंट का, you should vary now. Being a health professional, specifically rehab specialist, you should know कि normal heart rate कितना होता है या blood level कितना होता है. Then अगर blood oxygen level बहुत किस लेवल पर पहुंचेगा तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी करनी पड़ेगी, किस लेवल पर होगा तो हमें वेंटिलेट करना पड़ेगा पेशेंट को. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. बीइंग अ हेल्थ स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिकली रिहैब स्पेशलिस्ट, ओके, क्योंकि हम फिजिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनका बहुत एक्यूरेट किस्म का नॉलेज होना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज़ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन. प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन यू कैन से उस कंडीशन में होता है जब पेशेंट बिल्कुल लिवर फेलियर पे आ जाता है, या स्फीयर इन्फेक्शंस पे, उसके सिस्टम्स बिल्कुल फेलियर पे आ जाते हैं. देन देयर इज़ अ कंडीशन, ओके, वी कैन ट्रांसफ्यूज प्लाज्मा. एंड देयर इज़ लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस. लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ रिहैब स्पेशलिस्ट हैं जो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कितना इक्विपमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट किस लिए यूज़ होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम वेंटिलेटर्स के बारे में भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते. दैट्स वाई वी आर नॉट मोर कॉन्फिडेंट व्हेन वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट देयर इन द हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली इन ICUs. तो इसलिए डॉक्टर्स और हेल्थ स्पेशलिस्ट अपना मोरल डाउन कर लेते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी स्टेप पीछे चले जाते हैं. सो यू शुड नो कि एडल्ट्स को किस लेवल पर ज़रूरत है वेंटिलेटर की, उनका जो ब्रीदिंग पर सेकंड और पर मिनट है वो कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट क्या होना चाहिए. सो दीज आर द वेरी बेसिक स्टेप्स दैट यू शुड नो बिफोर ट्रीटिंग अ COVID-19 पेशेंट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है. नाउ लेट्स कम टू द रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन में हमारे पास मेजर 5 स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज़ फिजिकल रिहेबिलिटेशन, इमोशनल, psychological, nutritional and educational. So these 5 बेसिक कंसेप्ट्स जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जब देख रहे हैं, तो मेडिकेशन बहुत एंड पे आती है. सबसे पहले सारा बोझ रिहैबिलिटेशन पे पड़ जाता है और रिहैब वाले मुश्किल में आ जाते हैं. बट आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट वाओ, वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सोसाइटी, इन दिस कंट्री, सो आप जब तक अपनी पहचान खुद नहीं करेंगे,
अपने नॉलेज पर पूरा बिलीव नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्चुअली रीच दैट लेवल जो आप डिज़र्व करते हैं. सो रिहेबिलिटेशन, वी आर हैविंग 4 मेजर काइंड ऑफ स्टेप्स. जब भी कोई इन्फेक्शन के साथ कोई पेशेंट आ जाता है, स्पेसिफिकली कोविड-19 जिस पे भी हमारा फोकस है, अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आ जाते हैं तो हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं: प्री इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन, माइल्ड एंड क्रिटिकल इन्फेक्शन. सो अगर आपके पास कोई पेशेंट इस कंडीशन में आता है कि वो आपको आके कहे कि मैं एक्सपोज हुआ हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, देन व्हाट शुड यू डू? आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट की मैस कितना है, बॉडी मैस कितना है, उनका वेट आप चेक करेंगे, उनकी बेसिक हेल्थ कंडीशन चेक करेंगे, देन यू विल रिकमेंड हिम. आप उनको बताएंगे कि यू आर इन प्री इन्फेक्शन स्टेट और आपको इन्फेक्शन हो सकती है, देन यू शुड फॉलो ऑल दीज स्टेप्स. आप उनको एरोबिक्स सिखाएंगे, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, एजुकेशन एंड साइकेट्रिक सेशन. वाई वी शुड गो फॉर एरोबिक्स? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. अगर मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि हमें ये सब करवाना चाहिए तो क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेल, whenever we are doing aerobics, तो उससे क्या हो रहा है? Actually, we are increasing our heart rate and we are decreasing it immediately and we're controlling it, right? We're controlling our lungs. We're trying to control our breathing system. So that's why aerobics are quite important in pre-infection stage. Second thing is strengthening. Strengthening, we all know इसका क्या इम्पॉर्टेंस है. एंड देन बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. सबसे मज़ेदार बात है, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पेशेंट देखा एंड ही वाज इन एक्चुअली माइल्ड कंडीशन और वो अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे थे. आई मीन जब हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे एंड ही वाज नॉट इवन एबल टू टेल कि टाइमिंग क्या है और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले क्या खाया. अगर वो एक जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे, वो सहारे के बगैर चल नहीं सकते, एंड ही वाज क्वाइट यंग. फाइन. इसी तरह हमने जब चेक करने के लिए डिफरेंट पेशेंट्स उनको हमने डे 1 से बैलेंस ट्रेनिंग करवा रहे थे एंड देन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड देन वी केम टू नो या ओके, बैलेंस ट्रेनिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इन्फेक्टेड. सो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स इवन एंड स्टूडेंट्स एंड नॉर्मल पीपल विद इन द हॉस्पिटल, विद इन द सेटअप, दे आर ऑल फॉलोइंग द सिचुएशन, ऑल फॉलोइंग दिस this statement. So education, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ख़राब सी एक बात है कि कोई भी चीज़ जब हमें किसी फ्रेंड से पता चलती है, किसी सोशल मीडिया से, तो हम उसको फ़ौरन से बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि सब पेशेंट आपके पास आकर अपनी कहानी सुनाएं. आप पहले उनको एजुकेट करें कि देखिए ये मिथ है और ये वाली चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं एंड यू शुड फॉलो देम. Okay, and the psychiatric session is actually not for those जिनको कोई psychological issue है, actually to avoid them being a psychological patient. उनको आप डिप्रेशन से बचाने के लिए psychiatric session बहुत ज़रूरी है. स्पेसिफिकली आपके सेटअप में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये वाले सेशन बहुत ज़रूरी हैं. पोस्ट इन्फेक्शन अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सेटअप, एक पूरा रिकमेंडेशन लेटर और पूरी इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट्स में प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इन्फेक्शन, प्री इन्फेक्शन में, पोस्ट इन्फेक्शन में पेशेंट आता है, आई मीन उनको 1 और 2 डेज़ हुए हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या उनके पास लेस कॉमन कंडीशन के कुछ सिम्टम्स हैं, तो उनको आप कम से कम 3 घंटे के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए पर वीक. ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और उनकी कंडीशन वर्स हो सकती है. नंबर 3, माइल्ड कंडीशन के साथ जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल देन यू शुड गो फॉर, आप उनको डेली उनका नॉर्मल उनका हार्ट रेट चेक करना है, बार बार उनका ब्लड जो लेवल है वो चेक करना है. जब भी आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने जाएं, किसी भी वार्ड में, ओपीडी में, उनकी फ़ाइल को A to Z पूरा रीड करें और आपके पास आपके सेटअप में अवेलेबल जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, ब्लड टेस्ट के, यूरिन टेस्ट के और एनीथिंग दैट विच इज़ अवेलेबल एट देयर, ट्राई टू अवेल ऑल ऑफ दैम. ओके, जो भी माइल्ड कंडीशन में पेशेंट होंगे आप उनको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे अनटिल द सिम्टम्स आर रिजॉल्व. आप उनको सिर्फ क्वारंटाइन करेंगे. एंड द क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा होता है कि आप चेस्ट विजिट करवाते हैं, स्पेसिफिकली वाइब्रेशन, एंड आप उनको, कोई भी पेशेंट जो आईसीयू में आपके पास होते हैं या होंगे कोविड-19 के, आप उनकी पोजीशनिंग और एंकल पे फोकस करते हैं. आप एंकल पे फोकस क्यों करते हैं? नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन. हम जब भी पेशेंट को
एंकल की कोई मूवमेंट करवाते हैं, एक्चुअली वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द एंकल। हम ऑर्थोपेडिकली उसको नहीं देख रहे होते, हम एक्चुअली फोकस कर रहे होते हैं हमारे काफ मसल्स पर। और इसकी रीज़न ये होती है दैट वी ऑलरेडी नो इन द बॉडी वी आर हैविंग टू हार्ट्स। Okay, so calf muscles are known as the second heart of the body. So whenever we're working somewhere on our calf muscles, actually we are increasing the blood flow back to the heart. So it can be very, very helpful in the patients in ICU. Oh, sorry. Okay, so basic फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जा रहे हैं इंटरनेशनली, और वो बहुत बहुत हेल्पफुल हैं एंड पेशेंट आर गेटिंग रियली वेरी बेटर ऑन दैट। सो प्री इन्फेक्शन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आप, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं क्वारंटाइन हूँ या मैं इस कंडीशन में हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होकर उनको गाइड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप randomly उनको बताएं ओके यू शुड वॉक, यू शुड ड्रिंक वाटर। नो, यू आर हेल्थ प्रोफेशनल, यू शुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी प्रिसाइज while you are prescribing something. तो आप पेशेंट उनको बताएं कि yes you should go for a walk। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के अंदर ही 1000 steps per day आपको फॉलो करने हैं। स्ट्रेचिंग करनी है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है 20 steps a day, 20 times a day। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आप उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताएंगे ताकि उनका सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो। देन बैलेंस एंड कॉग्निशन एक्सरसाइजेज, और कोई भी एरोबिक्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो आपको उनकी जनरल हेल्थ स्टेटस के मुताबिक उनको कोई भी एरोबिक्स प्रिस्क्राइब करने हैं 30 मिनट्स पर डे। बट इफ़ देर इज़ अ पेशेंट इन माइल्ड कंडीशन या क्वारंटाइन है और वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको अप्रोच करते हैं, देन यू शुड रिकमेंड दैम मैकेंजी एक्सरसाइजेज, मैकेंजी स्ट्रेचेज आप उनको सिखाएं ताकि अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स डाउन करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको बताएं, स्पेसिफिकली ऐसी एक्सरसाइजेज जिनमें आप पर्स ब्रीदिंग करते हैं। एंड पर्स ब्रीदिंग इज समथिंग लाइक जिसमें आप अपने लिप्स को हुक शेप करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, होल्ड अप करते हैं 2 सेकेंड्स के लिए, 2 to 4 सेकेंड्स के लिए, एंड देन ब्रीद आउट, फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हैं। नो एरोबिक्स आर अलाउड व्हेन यू आर क्वारंटाइन, क्योंकि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और ये एक रिस्क हो सकता है एंड पेशेंट कैन बी इन वर्स्ट कंडीशन, और वो घर से हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकता है। हुक पोजीशन पेशेंट को बताएंगे। हुक पोजीशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पेशेंट को आप सिखाएं कि अपने दोनों नीज़ को बेंड करें, अपने साथ रखें, या सिटिंग पोजीशन में कर लें, या अगर आप बेड पे लेटे हैं तो भी इसे करें। वाई? नाउ देयर इज़ अ रीज़न वाई हुक पोजीशन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम हुक पोजीशन मेंटेन करते हैं तो हम डायफ्राम को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में थोड़ा आसानी हो जाती है। Then balance and cognition exercises are very important, and you should know at least 5 to 10 different kind of balance and cognition exercises। हर पेशेंट के लिए वेरी करता है एज पर, उनकी जनरल हेल्थ स्टेटस पर, उनके मेडिकल स्टेटस पर, उनके ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स पर। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल while prescribing any kind of exercise। देन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी सेटअप में काम कर रहे हैं और आपके पास वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हैं, तो आपको चेस्ट फिजियो, फर्स्ट स्टेप इज़ चेस्ट फिजियो, और उसमें भी सब टेक्निक्स आप पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बहुत डिस्ट्रेस में होता है और उनके लंग्स ऑलरेडी इफेक्टेड हैं। सो यू कैन जस्ट अप्लाई वाइब्रेशन। So any chest physio there or anyone who is already working as a chest physio, वो जानते हैं कि ये क्या टेक्निक है and they know how to apply that. So first of all, chest physio, specifically vibration techniques. Number 2, you can apply ankle and knee stretches and back stretches. Now stretches are important for better blood flow and it can release your stress as well. Positioning regarding lobes of the lungs, आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट करें। whenever you are going for COVID-19 पेशेंट, आप उनको हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद उनको ऑस्कल्टेट करें जब आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। और फिर आप चेक करें कि ओके यहाँ पे मुझे पहले क्रेपिटस फील हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद फ्लूइड है, एनीथिंग, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक एंड दिस पोजिशनिंग, एंड देन यू शुड चेक ऑन योर सेल्फ कि ओके आफ्टर डूइंग ऑल दैट स्टफ अब पेशेंट का कंडीशन कैसा है। एंड यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन अ COVID-19 पेशेंट। यू शुड चेक आफ्टर 5 मिनट्स। ये एक WHO की तरफ से रिकमेंडेड जो है वो एक परफॉर्मा है। एंड पर्स पर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप पेशेंट को सिखाएंगे कि आपको सांस कैसे लेना है, डीप ब्रीथ करना है, लिप्स को राउंड करना है, आपने डीप ब्रीथ करना है, होल्ड करना है
2 से 4 सेकंड्स के लिए जितना आप ऑक्सीजन को या एयर को अपनी लंग्स के अंदर होल्ड कर सकते हैं, देन आप उसको एक्सपेल आउट करें फोर्सफुली. So this is known as pulse breathing. Then is relax shoulder and neck. आप पेशेंट को पोजीशनिंग बताएं, उनके शोल्डर्स को और नेक की पोजीशनिंग करें. जब मसल्स को रिलीज़ करें, आप उनको मैनुअल भी कर सकते हैं और किसी डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं. देन नेज़ल ब्रीथ फॉर 2 seconds एंड ब्रीथ आउट फॉर 4 seconds. ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए है. आप पेशेंट को बोलें कि अपनी नाक से सांस लें और 2 सेकंड के लिए कॉन्टीन्यूस सांस अंदर लेता रहे, जितनी हवा अंदर जाती है लेके रखिए. और फोर्सफुली अपने डायफ्राम को यूज़ करते हुए 4 सेकंड के लिए, मतलब डबल जितना आपने इनटेक किया है उससे डबल आउट ब्रीथ करें और 4 सेकंड के लिए आउट ब्रीथ करवाएं. ये उन पेशेंट्स के लिए है जो हॉस्पिटलाइज हैं या वो पेशेंट्स जो कि माइल्ड कंडीशन में हैं. नाउ इफ़ यू आर वर्किंग इन ICU देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, मोर केयरफुल. आप पोजिशनिंग करवाते हैं पेशेंट की ड्रेनेज के लिए. लंग्स में कोई भी फ्लूइड, कोई भी कैविटस साउंड या कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन फील होती है, ब्रीदिंग में किसी पेशेंट को इशू है और कफ है, आपने ऑस्कल्टेट करें. आप चेक करें कि अपर लोब, मिडल, लोअर, फ्रंटल और पोस्टीरियर किस साइड पर आपको कैविटस फील हो रहा है, किस साइड पर, किस एरिया पर आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, उसको आप पहले ऑस्कल्टेट करें, आप उसको पॉइंट आउट करें एंड देन उस पर आप रिएक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग पोजिशनिंग करें पेशेंट की. एंकल स्ट्रेचेस करवाएं, नी पोजीशनिंग करवाएं. एंकल स्ट्रेचेस के बाद नी पोजीशनिंग है. एक्चुअली जब भी कोई ऐसे पेशेंट जो हम ICU में आपको मिलते हैं, उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग होती है. आप उनके एंकल को इतना बेंड करें कि उनका नी 30 डिग्री पर बेंड हो और इनके हिप पर थोड़ा सा फ्लेक्शन हो. इस कंडीशन में पेशेंट को मेंटेन करें. एंड देन अप्लाई सम बैक सपोर्ट एंड सम वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस, वाइब्रेशन टेक्निक्स ऑन द लंग्स. स्पेसिफिकली उस एरिया पर, उस लोब पर जो आपने पहले ऑस्कल्टेट किया है पेशेंट के लिए, उस पर ऑस्कल्टेट करें और वहाँ पर आप वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस करवाएं उनको. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज हियर नाउ. पोजिशनिंग एंड बेसिक गाइडेंस फॉर लंग सपोर्ट एंड ड्रेनेज रिगार्डिंग लोब्स. सो अगर हम लेफ्ट साइड पर जाएँ, फर्स्ट जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, द लोअर लोब एंड सुपीरियर सेगमेंट्स. इफ़ यू आर ऑस्कल्टेटिंग अ पेशेंट एंड यू केम टू नो द स्पेसिफिक एरिया कि अच्छा इन एरिया पे आपको थोड़ी सी कैपिटस फील हुआ है या आपको लगता है कि यहाँ पे फ्लूइड है या पेशेंट इस एरिया पर प्रेशर ज़्यादा कर रहा है वाइल ब्रीदिंग एंड वाइल कफिंग, फिर आप पेशेंट की इस तरह पोजिशन मेंटेन करते हैं कि उनके हिप पर 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल ना हो. सो आप उनके 2 से 3 पिलोज रखें या ऐसा बेड अक्सर अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल्स में. आप उनको इस तरह मेंटेन करें कि उनका हेड डाउन हो जाए और हिप पर कम 20 से 30 डिग्री के लिए फ्लेक्शन हो जाए. Second one is upper lobe and anterior segment. If there is some crepitus, some fluid available or something issue there in the upper lobe and in the anterior segments, तो फिर आप एंकल को फ्लेक्स करेंगे, नीज को कम से कम 30 से 45 डिग्री, हिप पर फ्लेक्शन नहीं होगी लेकिन हिप पर हल्की सी एक्सटेंशन करेंगे और हेड डाउन करेंगे. फिर आप पोजीशन मेंटेन करने के बाद आप पोजीशन मेंटेन करेंगे पेशेंट की और फिर आप उनको वाइब्रेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे ऑन द स्पेसिफिक एरिया जिस पे आपका फोकस है. और हर 5 मिनट्स के बाद आप ऑस्कल्टेट करेंगे. अगर पेशेंट कफ करता है और एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है, इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं तो आप सक्शन के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो ICU में थे और रिकवर हुए हैं. चीरू हॉस्पिटल, आई एम वर्किंग देयर इन चीरू हॉस्पिटल, शेंटोंग यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर मैक्सिमम चाइना में लाइक 38 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ICU में क्रिटिकल कंडीशन में थे एंड दे वर बीइंग rescued by the rehab specialist. So this is our importance. You should know who you are. Okay, so if there is some upper lobe, अगर किसी upper lobe में और apical सेगमेंट में अगर पेशेंट को आपको फील होती है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है या हमें इस एरिया पे फोकस होना चाहिए, देन यू शुड अप्लाई अ पोजीशन इन सच अ वे कि आपको पेशेंट को आगे की तरफ झुकाना है. पेशेंट को आप स्ट्रेट बेड पे लेटाएं और फिर उनको सिटिंग पोजीशन में लाएं इस तरह के उनके हिप पर कम से कम 45 से 60 के दरमियान एंगल बने. ऑलराइट. इन अ फ्यू कंट्रीज कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टैंडिंग पोजीशन में लाकर फिर 40 डिग्रीज पे ले जाते हैं एंड फिर उनको एक्सपेल आउट करवाते हैं. लेकिन अगर आप ICU में काम कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स आप पेशेंट को खड़ा नहीं कर सकते. यू कैन डू इट ऑन द बेड.
इन द लास्ट वे, अगर अपर लॉब्स और पोस्टीरियर सेगमेंट में किसी पेशेंट को आपको फील होता है कोई भी फ्लूइड या कोई भी रिस्ट्रिक्शन, सो देन यू कैन अप्लाई सच पोजिशन कि आप पेशेंट को उनकी नीज को स्ट्रेट करने के बाद को बिठाएं और उनकी जो स्पाइन है उसको एटलीस्ट सी पोजीशन में लेकर आएँ, थोड़ा सा काइफोसिस पोजीशन में लेके आएँ, एंड देन अप्लाई योर वाइब्रेशन टेक्निक एंड देन गो फॉर सम कफिंग टेक्निक्स एज वेल. सो अगर पेशेंट सेल्फ क्वारंटाइन है तो आप उनको गाइड करेंगे 1000 स्टेप्स डेली, ये WHO के रिकमेंडेड है. ब्रीदिंग इन्हेंसमेंट, जिसमें आप उनको पर्स ब्रीदिंग करवाएंगे. मैकेंजी स्ट्रेचेस आप उनको सिखाएंगे, 2 सेट्स करने होंगे डेली, मॉर्निंग एंड द इवनिंग एज वेल. हुक्ड सिटिंग पोजीशन आप उनको सिखाएंगे एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द इवनिंग. हुक पोजीशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, जिसमें आप पेशेंट को वॉशरूम पोजीशन बताते हैं कि वो अपने पाँव पे बैठे, या फिर इस तरह अगर वो बेड पे लेटे हुए हैं तो अपने दोनों नीज को पकड़ के अपने चेस्ट तक लेके आएँ और वहाँ पे रिलैक्सिंग पोजीशन में इसको मेंटेन करें एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स. देन देयर इज़ सपोर्टेड लाइंग. आप इस पोजीशन में पेशेंट को मेंटेन करें कि कम से कम उनकी हिप सपोर्टेड हो लेकिन उनके नी 30 डिग्री फ्लेक्स हो. आई मीन यू कैन प्लेस सम पिलोज अंडर द नी. देन देयर कफ मसल स्ट्रेचिंग. आप ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए काफ मसल्स की स्ट्रेचेस करवाएंगे. आप पेशेंट को खुद सिखा सकते हैं, अगर वो पेशेंट घर पे है ऑफ कोर्स और वो वॉक कर सकते हैं तो आप उनको स्टैंडिंग करवाएंगे. स्टैंडिंग में स्ट्रेचिंग करवाएं, दैट्स क्वाइट बेटर. इफ़ यू आर सीइंग द पेशेंट बाय योरसेल्फ देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल. Now, if the patient is hospitalized, then we have 4 conditions in the hospital. Either patient is in the ward, either patient is in isolation, in a critical unit, or in the recovery. If the patient is in the ward, then you must clear the chest. आपको पेशेंट की चेस्ट क्लियरेंस के लिए हर टेक्निक आपको बेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट कंडीशन आप वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे, आप पोजिशनिंग करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे और पेशेंट से आप कफिंग के बाद उनसे कोशिश करेंगे कि वो उसमें स्पूटम कुछ एक्सक्यूट करें. एंड देन यू विल एजुकेट देम some stretches and breathing exercises. But if the patient is isolated, then support position is maintained, is recommended. Knee and ankle stretches are recommended with pulse breathing. But if the patient is in ICU and you're treating them, then you must go for passive stretches all the way from head to toe. Passive positioning, and then you should definitely go for monitored chest clearance technique. Monitored chest clearance techniques में हमारे पास 3 से 5 टेक्निक्स आते हैं. आई डोंट नो इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान और नॉट, बट देयर आर सम टेक्निक्स जिनमें प्रॉपर ऑन द टाइम, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड के साथ हम चेक करते हैं कि हम जब पेशेंट को वाइब्रेशन एक्सरसाइज करवा रहे हैं या टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उनके लंग्स पर, तो क्या कंडीशन है उनके स्पूटम की या उनके जो कोई भी फ्लूइड है उनके लंग्स के अंदर, उसकी क्या कंडीशन है, अब वो किस एरिया पे है, और वाइब्रेशन या आप कोई भी टेक्निक्स जो उनको अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उसमें बेटरमेंट आ रही है या नहीं, और किस पोजीशन में आपको पेशेंट को लाना है, सो इट कैन बी हेल्पफुल. नंबर 2, ऑस्कल्टेशन. द बेस्ट वे इज़ ऑस्कल्टेशन. इफ़ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान और या ऐसी जगह पर जहाँ पर अल्ट्रासाउंड, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड या कोई भी ऐसी टेक्निक अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन ऑस्कल्टेट. एंड नाउ रिकवरी. रिकवरी में पेशेंट को अगर पेशेंट फुल रिकवर हो जाता है हॉस्पिटल से, स्टिल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि हमें पेशेंट को कम से कम 2 हफ्ते के लिए फिर से क्वारंटाइन में रखना है. सो दैट्स what is recommended. But you can teach them some low intensity medium endurance exercises with 500 to 1000 steps per daily, and full body stretches, which are really very important, some breathing exercises and some endurance training. The most important thing which is missing in Pakistan is actually a teamwork, professional expertise, some technical support and excellence, and education. ये सब की सब चीज़ें एक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए हैं, आपके लिए हैं. व्हेन यू आर ट्रीटिंग, व्हेन यू आर वर्किंग विद इन अ सेटअप, यू शुड नो कि आपके पेशेंट को अगर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट देख रहा है तो उनका क्या स्टेटस है. यू शुड गो एंड डिस्कस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट विद द ऑर्थोपेडिक्स. इफ़ द न्यूरो इज़ कंसर्न, फिर आपको अपने पेशेंट के बारे में उनके साथ डिस्कशन करनी है. बट if you are not confident on your knowledge, you will lack that. So professional expertise are the most important thing. Technical support and in excellence. Unfortunately, whenever you are working in a setup, you don't know about 90% of the things available in the hospital. Unfortunately,
अगर आप किसी आईसीयू में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीयू में अगर 10 इक्विपमेंट्स पड़े हैं, यू शुड नो कि कौन सा इक्विपमेंट या कौन सी मशीन किस काम के लिए है, कैसे यूज़ होती है, उस पर जो रीडिंग्स और रेटिंग्स हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सो दिस इज़ व्हाट technical support and excellence can increase your confidence level. And there is education आपका और पेशेंट का. जब आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, you should explain him everything that your condition is like that. आपकी कंडीशन माइल्ड है, सीवियर है, इसके वर्स्ट हो तो ऐसा होगा, बेटर हो तो ऐसा हो सकता है, आपकी कंडीशन में मैं ये वाली टेक्निक्स अप्लाई करूँगा या करूँगी, इससे आपको इतना फ़ायदा हो सकता है या इतना नुकसान हो सकता है. सो दिस इज़ द बेसिक एजुकेशन जो कि अक्सर पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान मिसिंग होती है, जिसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम एक मिसबिहेव क्रिएट हो जाता है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के दरमियान. सो अ टीम वर्क इज़ एक्चुअली द की ऑफ सक्सेस. सो मल्टी अप्रोच. Whenever you're working within a setup in the hospital, ICU के आप मेडिकल ऑफिसर, वहाँ पे विज़िट करने वाले हर डॉक्टर, आपके पेशेंट्स, उनके अटेंडीज़, आपको उनके साथ बार बार कोलेबोरेट करना पड़ता है इन सच अ वे कि आप उनको पेशेंट की रियल कंडीशन बताएं इन ए वेरी layman language instead of your medical language, so they can understand you better. Professional expertise actually explain the plan for patient treatment and create a mutual understanding while remaining within the concerned field of work. You should know that you are a rehabilitation specialist and a medical doctor should know they are medical specialists. Within your concerned field, you have to discuss everything happening to your patient to the concerned. और आपको उसमें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करना कि आप अपने पेशेंट की कंडीशन किसी डॉक्टर, किसी और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ शेयर कर रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट दैट बिकॉज दिस इज़ द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ. सो एक पेशेंट की हेल्थ पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें. इट डजेंट मैटर कोई आपके बारे में क्या सोचता है. जस्ट गो एंड डिस्कस एवरीथिंग अबाउट योर पेशेंट टू द कंसर्न डॉक्टर. Staff and doctor collaboration. Whenever you are working in a setup, मेरी सबसे ज़्यादा फोर्स इस बात पर होती है कि आप जब भी किसी जगह पर काम करें तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके इस सेटअप में कितना सामान है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी नंबरिंग, उनकी रेटिंग, उनकी स्कोरिंग, उनके ऊपर आने वाले सब नंबर्स. एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके वेंटिलेटर अगर चल रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसके ऊपर आने वाले नंबर्स, उसके ऊपर आने वाली रेटिंग क्या शो कर रही है. अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बेस्ट नॉलेज होगा या बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होगा, तभी आप एक पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं. अदरवाइज़ यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस और आप एक कम्युनिटी, जब एक डॉक्टर्स कम्युनिटी में बैठेंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे पेशेंट को, यू विल फेल योर सेल्फ. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द, उस पेशेंट के इर्द गिर्द जो सी चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए, और जो आपके एरिया में चीज़ें हैं, जो आपके स्टाफ और आपकी जगह पे हैं, आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए. सेम लाइक इन कोविड-19, अगर आप किसी कोविड-19 के पेशेंट को देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये माइल्ड कंडीशन में चल रहे हैं, बगैर उनके बताए या बगैर आपके उनकी फ़ाइल देखे या उनकी मेडिकल रिकॉर्ड देखे. यू शुड केम टू नो कि ये माइल्ड कंडीशन में है. ओके, ये इनका सीवियर कंडीशन हो सकता है. ओके, अगर इनको ये वाले सिम्टम्स हैं, ये तो लेस कॉमन सिम्टम है, इट मीन्स ही कैन रिकवर, ही जस्ट नीड टू बी क्वारंटाइन. सो यू आर द फर्स्ट वन हु विल डिसाइड कि पेशेंट को क्वारंटाइन होना है, मेडिकेशन करनी है, रिहेबिलिटेशन करनी है, या आपको उनको कहीं रेफ़र करना है. सो यू, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट सिचुएशन, you really can't help the patient. The most important thing जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है पाकिस्तान में, पेशेंट के अटेंडीज़ को एजुकेट करें. वर्ड क्रिएट होती है जब आप उनके अटेंडीज़ को नहीं बताते कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है और ये वर्स ये हो सकता है और बेस्ट ये हो सकता है. अगर जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, आप उनके अटेंडीज़ को या एटलीस्ट पेशेंट्स को आप ज़रूर बताएं, ओके अभी आपके पेशेंट की कंडीशन माइल्ड है और लग रहा है इसकी कि हम इनको बेटर कर सकते हैं, या लग रहा है कि हम इनको थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं. सो एक्सप्लेन देम एवरीथिंग. आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. एक्सप्लेन देम, एटलीस्ट एक्सप्लेन देम, सो दे आर
gonna help you, so they are gonna respect you. ऐसा नहीं होगा फिर कि अगर आपके पेशेंट्स वर्स हो गया तो वो आपसे मिसबिहेव नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक रूल कि आप पेशेंट के अटेंडीज़ को प्रॉपरली एजुकेट करें. मोस्टली इन पाकिस्तान बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी गूगल से बहुत सारा सर्च कर कर और बहुत सारा सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं. सो यू शुड explain them, all right, this is the right one and this is the wrong thing, and here I'm lying your patient and it can be better or it can be worse. So it depends upon you how you treat the patient and their attendees. Well, in this condition, most of the patients and doctors are not working, unfortunately. अभी कुछ दिन पहले मैंने आई थिंक एक वीक पहले मैंने 2 कैंप कर लिए एंड अनफॉर्चुनेटली कंडीशन इतना बुरा था. व्हेन आई जस्ट गो देयर, वो एक केपीके का एरिया था जहाँ पर पेशेंट तो चले बहुत सारे थे, लेकिन जो डॉक्टर्स उस एरिया के थे दे वर नॉट इन कंडीशन कि वो पेशेंट को ट्रीट करें या उनको देखें भी. एंड इवन पेशेंट्स इस कंडीशन में थे कि वो पैनाडोल तक उनको नहीं मिल रहा था. सो बीइंग a Muslim shall never leave another Muslim helpless in the time of need. This is what the saying of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we should never leave a patient in a bad condition. If they are not able to pay, then at least you can leave the pay.